कुंजन आचार्य का, जिनके सानिध्य में 2011 से 12 के बीच में उनका सानिध्य मिला, और पत्रकारिता के मायने और नैतिक पत्रकारिता सर मैंने आपसे सीखी है। तो आपका स्वागत है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में। अब मैं स्वागत की इस कड़ी में हमारे एचओडी प्रोफेसर देवव्रत सर का स्वागत करना चाहूंगा, जिनके मार्गदर्शन में हम ये लेक्चर सीरीज पिछले 2 महीने से चला रहे हैं। और मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि ये स्पेशल लेक्चर सीरीज छात्रों और छात्राओं के लिए चहुमुखी विकास के लिए काफी सहयोगी है। तो हम आपकी आज्ञा से इसे जारी रखेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। अब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षकगण, प्रोफेसर्स और इसके अलावा पीएचडी स्कॉलर्स, छात्र छात्राओं सभी का मैं स्वागत करता हूं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी का स्वागत है। अब मैं प्रोफेसर देवव्रत सर से निवेदन करूंगा कि सर संक्षिप्त परिचय देकर के विधिवत रूप से शुरुआत करें कार्यक्रम। Thank you, Ramniwas. जी सर। In fact, let me introduce in brief about the topic also. We have been thinking about what has been the impacts of COVID period and lockdown period during last 6 to 7 months, and I discussed it with Ramniwas that why not to ask Dr. Kunjan Acharya to speak on this topic. We all know that after the lockdown, which was imposed on 25th March, first lockdown, entire human civilization, especially Indian, because Indian lockdown was the strictest, most stringent lockdown in the world, and entire human society has undergone a sea change. Entire lifestyle, way of thinking, doing things has changed, and this seminar is also happening via online media. Webinars are happening. We have witnessed all these things. Same thing happened with media also, because newspapers, radio, television, online media, entire dynamics of media has changed. A lot of challenges came before journalists as well as media. Some of the digital media got a huge spurt, huge popularity during this period, and newspaper they got impacted very adversely. These all things happened, and we thought that why not to have a discussion on this topic at length, and we'll be asking a lot of questions. Then Dr. Kunjan Acharya would be the right person to talk on this topic. Why? Because he has been active for the last 2 decades in media academics as well as media profession. I've just gone through his resume, and I was very happy that he has been very actively engaged in media profession as well, because he worked for 15 long years in Rajasthan Patrika, then Dainik Bhaskar, and in ETV also, in Adu TV. I don't know whether he worked in Rajasthan or Hyderabad. So I was in Hyderabad. Yes, sir. Hyderabad, nah? Because most of the people, when they join ETV, first their training is done in Hyderabad, and a lot of students from my department, our department also, more than 50 students now, they are working in different channels in Hyderabad. And every year ETV is the prime recruiter from our department. So that way, for the last 8 years, like he joined Mohanlal Sukhadia University, Udaipur in 2012, and at present he is heading the Department of Journalism and Mass Communication over there. And he is very active in Udaipur also. A lot of activities, a lot of programs he has been organizing, and with UNICEF also. We at Ranchi also, we keep on doing many things in association with the UNICEF people. So that way, he's a thorough writer also. Let me tell you, he has written 7 books, and recently he has extreme interest in literature as well. Because Ek Tukda Asman, this book has been awarded by the Sahitya Akademi, and
we are very happy to have him with us. Let's have a good discussion and let us listen to him. What has been his observation and experience? Dr. Kunjan, please. थैंक यू सर। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के साथ, आप लोगों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ संवाद करने का अवसर आपने दिया है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जैसी विद्वत जनों के बीच मुझे एक हम लोग लेक्चर सीरीज चला रहे हैं और आपको ऐसा करना है, तो मुझे थोड़ा सा झिझक भी हुई कि किस तरह से बातचीत करनी है, क्या करना है। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना काल है और हम सभी लोग तमाम गतिविधियां, मतलब परीक्षाओं से लेकर लेक्चर्स तक और क्लासरूम से लेकर मीटिंग्स तक सब कुछ गूगल मीट पे हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक न्यू नॉर्मल में शामिल हो गया है, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है। तो हमें यही इसी के साथ जीना है। विषय जो है आज का, इसमें दिया गया है कि कोविड-19 का जो मीडिया पर प्रभाव पड़ा है वो किस रूप में, कैसा, और इसका क्या प्रभाव बना हुआ है। पिछले एक दशक में जितनी तरह की खबरें हमने देखी या जितनी तरह की हमने अखबारों की चीजें सुनी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चिंताजनक जो चीज उभर के आई वो ये थी कि इस दौर की जो महामारी है, इसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया और जो चाइना से निकल के पूरे विश्व में व्याप्त हो गया, आज ना सिर्फ पूरा विश्व बल्कि हम भारतवासी भी एकदम माइक्रो लेवल पर जाकर भी इससे बहुत गहनता से प्रभावित हुए हैं। पूरे एक शताब्दी की ये सबसे बड़ी बीमारी का नाम दिया गया, और चूंकि इतनी बड़ी बीमारी जिसने तमाम तरह की चीजों को प्रभावित किया, समाज को प्रभावित किया, सरकारों को प्रभावित किया, शासन प्रशासन तमाम तरह को प्रभावित किया, तो मुझे लगता है कि जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो कैसे अछूता रह सकता है। उस पर बहुत गहन प्रभाव पड़ा है और उस प्रभावों की चर्चा के लिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। 3 महीने का जो सबसे क्रूशियल टाइम था वो था लॉकडाउन पीरियड, और उस लॉकडाउन में जितने तरह के बदलाव हमने मीडिया में देखे, उतने मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौरान तमाम तरह की नेगेटिविटी इतनी हावी हुई, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की खबरें, लगातार कोरोना का चर्चा, लगातार वो बातें जिनको हमने सुनने, समझने और देखने की क्षमता कभी पैदा ही नहीं की। इतनी नेगेटिविटी का माहौल हो गया कि हम लोगों को तमाम तरह के पाठक, श्रोता और दर्शक खोते चले गए। मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पाठक और दर्शक छूटते चले गए। सबसे बड़ी चीज, जो 3 चीजों पर कंसंट्रेट करना चाहूंगा मैं। पहला, जो मीडिया को सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो रेवेन्यू का हुआ, उसकी तरफ से कह रहा हूं। जो एडिटोरियल कंटेंट की तरफ से मैं कहूंगा सबसे बड़ा नुकसान हुआ पत्रकारों को रोजगार का हुआ। और तीसरा, जो दर्शकों और पाठकों को जो नुकसान हुआ वो था कंटेंट के लेवल का नुकसान। सब चीज डिजिटल पर शिफ्ट हो गई, तमाम तरह की अखबार भी, पत्रिकाएं भी, टीवी भी, और जो डिजिटल पे था वो खबरों में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे बड़ा नुकसान उस पाठक का हुआ जो नियमित तौर पे अखबार पढ़ता था, खड़ी पर, घर पर, ऑफिस में। वो लोग जो डिजिटल कंटेंट के आदी नहीं थे, वो पाठक छूट गया, और जो बचा हुआ पाठक था वो शिफ्ट हो गया डिजिटल कंटेंट पे। लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो ये था कि लोगों ने अखबार मंगवाना बंद कर दिया घरों तक। एक ऐसा रूमर आया कि चूंकि वो अखबार 50 तरह के प्रोसेस से गुजर कर हमारे घर तक पहुंचता है, तो उस प्रोसेस के दौरान कहीं ऐसा ना हो कि हम उस अखबार के जरिए कोई वायरस को निमंत्रित तो नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा बड़ा संकट था। और अखबारों को अभी तक ये सफाई देनी पड़ रही है कि अखबार का कागज पोरस होता है, उसके जरिए कोरोना वायरस नहीं फैलता, इसके जरिए अफवाह नहीं फैलती, उसके जरिए कंटेंट और हम लोग तथ्यात्मक जानकारी फैलाते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरे 100 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रिंट मीडिया को लगातार ये सफाई देनी पड़ी कि अखबार से वायरस नहीं फैलता है, अखबार पढ़िए। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि WHO की जो गाइडलाइंस थी वो लगातार बदलती रही। पहले था कि अखबार से वायरस फैल सकता है, तो लोगों ने अखबार बंद कर दिया। फरवरी मार्च का दौर था और लोगों ने अखबार को हाथ में लेना बंद कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे घर के लोग इससे संक्रमित हो जाए। तो मीडिया के प्रति एक बड़ा डर का माहौल अखबार के जरिए सबसे पहले और सबसे शुरुआती दौर में ये देखने को मिला।
अखबार मंगवाना बंद किया तो सर्कुलेशन कम हो गया, सर्कुलेशन कम हुआ तो उस दौरान विज्ञापन भी कम हो गए, विज्ञापन कम हुए तो उसका असर कंटेंट पर भी पड़ा, सर्कुलेशन पर भी पड़ा और अखबार के पन्नों पर भी पड़ा। मुझे ऐसा पहली बार लगा कि खबरों का अकाल सा हो गया है। लॉकडाउन के दूसरे महीने में चलते हुए ऐसा लगता था कि खबरों में सिर्फ ही और सिर्फ कोरोना ही है, इसके अलावा कोई खबर नहीं है। अखबारों के जो पन्ने 20, 24, 25, 30 पेज के होते थे, वो पन्ने 12 से 14 पेज में सिमट गए। और मैंने अपने जीवन काल में पहली बार देखा कि जो परिशिष्ट हैं वो अखबार के मूल पन्नों के भीतर शामिल हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ, परिशिष्ट अलग से आता था हमेशा, उनको मूल पन्नों में शामिल कर गया है। तो ये बहुत बड़ा असर हुआ जो प्रिंट मीडिया के साथ हम सब लोगों के बीच में आगे पसर गया। रोजगार की दृष्टि से अगर चर्चा करेंगे तो लॉकडाउन के दौरान ही अखबारों ने पत्रकारों की छटनी शुरू कर दी, टेलीविजन चैनल ने छटनी शुरू कर दी। कहा गया लॉकडाउन का दौर है, रेवेन्यू बंद हो गया है, आप लोगों को अब नई व्यवस्था देखनी होगी। कितना बड़ा एक त्रासदी का दौर हो सकता है, आप कल्पना कीजिए, जब बाहर नेगेटिविटी का माहौल है पूरा, पत्रकार दिन रात काम कर रहा है और इसमें अगर प्रबंधन ये कहे कि भाई अब तो नौकरी नहीं है, आप तो अपना नया कुछ देख लीजिए, इससे बड़ा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। मुझे अपने कम से कम ऐसे 100 मित्रों का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगा बिना नाम लिए, कि उन लोगों को या तो कह दिया गया कि आपका कल से नहीं आना है क्योंकि आपका वेतन ज्यादा है। कुछ प्रबंधन ने कहा कि जिनका वेतन 1 लाख रुपए से ज्यादा है उनका वेतन 50% तक कम कर दीजिए या 75% तक कम कर दिया। 25 अलग अलग प्रबंधन ने अलग अलग वेतन कम कर दिए। तो ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि एक तरफ आप एक महामारी से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रबंधन ने यह तय कर लिया कि रोजगार के अवसर कम कर देने हैं। एक प्रबंधन ने कहा कि 30,000 में अगर हम लोग एक आदमी रखेंगे तो 10-10 हजार के 3 आदमी क्यों ना रख ले हम लोग। और ऐसे दौर में जब रोजगार की कमी थी तो ऐसा भी हुआ कि लोग 10-10 हजार में काम करने को तैयार हो गए। ये पत्रकारों के लिए रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़े मुश्किल का दौर था। बड़े अखबारों ने स्लैब बना दिए। हालांकि आप अगर देखेंगे गाय बगाहे तो ये दौर पहले भी था कि अखबारों में लगातार छटनी हो रही थी। जिस पत्रकार को निकालना है, कल्पना कीजिए किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहां उसका नेटिव प्लेस है, तो उसको कम से कम 2000 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दीजिए, या तो नौकरी छोड़ देगा या वो अपनी मुश्किल से काम करेगा, मजबूरी में काम करेगा। तो ये तब भी चल रहा था। लेकिन कोरोना काल में कोरोना का नाम लेकर तमाम तरह के प्रबंधन ने कैंची चलाई रोजगार पर, पत्रकारों के हितों पर और पत्रकारों की उन तमाम गतिविधियों पर जिसके जरिए कि अखबार या टेलीविजन चैनल फलते फूलते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं और कंटेंट जिसका एक प्राणवायु होती है, उसी पर कैंची चलाने का काम किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे बड़ा संकट हुआ, कई लोगों को निकाल दिया गया बड़े पैमाने पर और बहुत बेरहमी के साथ। प्रिंट मीडिया ने फिर भी लिहाज रखा, स्लैब बनाया, ट्रांसफर किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वो लिहाज भी नहीं रखा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सीधा कहा 50 लोग कल से नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत चिंताजनक दौर लॉकडाउन के दौरान या पोस्ट लॉकडाउन भी जो अभी चल रहा है वो भी अभी कभी कम नहीं हुआ है। नियमित तौर पे ये गतिविधियां जारी है। जैसा मैंने आपको कहा कि 3 महीने के दौरान अखबारों के पन्ने सिर्फ और सिर्फ खबरों के साथ थे, विज्ञापन गायब हो गया। जब ये पूछा गया कि भाई विज्ञापन कहाँ गायब हो गए, तो संस्थानों ने कहा कि चूंकि हमारे जो मजदूर हैं पलायन कर गए हैं, प्रोडक्शन बंद हो गया है, कोई गतिविधि नहीं हो रही है, तब क्या किया जाए, विज्ञापन बंद हो गया। विज्ञापन बंद हो गया तो अखबारों के कंटेंट पे असर पड़ा। आप जो बड़े बड़े अखबार हम देखा करते हैं, अभी भी देखते हैं, त्योहारी सीजन में आज तो 2 अखबार हैं, सारे पिछले 3 दिन से 2-2 अखबार आ रहे हैं 24-24 पेज के, क्योंकि विज्ञापन आ गया है। जब विज्ञापन होता है तो कंटेंट कम हो जाता है, लेकिन जब विज्ञापन कम होता है तो कंटेंट बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे दौर में जब लॉकडाउन में थे या पोस्ट लॉकडाउन में थे, जब कंटेंट के नाम पर सिर्फ ये था कि वायरस कैसे फैलता है, वायरस से कैसे बचें, कितने लोग संक्रमित हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोगों के परिवार जो हैं एक साथ संक्रमित हो गए, ये एक बहुत बड़ा असर था जो कंटेंट से लेकर सर्कुलेशन तक चल के आया। रेवेन्यू का जो नुकसान हुआ मान सकते हैं। बड़े अखबार तो हम ये मानते हैं कि जैसा सर देवर जी जानते हैं कि हम अखबारों के जरिए जिन चीजों को देखते समझते हैं, बड़े अखबारों में विज्ञापन पॉलिसी, मार्केटिंग या अग्रेसिव मार्केटिंग के जरिए काफी सारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि 3 महीने के दौरान ऐसा कुछ हुआ होगा कि लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए, या ऐसा कुछ हुआ होगा कि अखबार के पन्नों को कम कर दिया जाए। लेकिन कॉस्ट कटिंग के नाम पर जो बरसों से चलता रहा वो इस दौरान भी हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो छोटे और मझोले अखबारों पर पड़ा। साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्रिकाएं बंद हो गई। सबसे बड़ी पत्रिका बच्चों की हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की नंदन पत्रिका को लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिया गया। आप सोचिए कि
छोटे अखबार जिनकी प्राणवायु ही सरकारी विज्ञापन होते हैं या जो जिन दूसरे विज्ञापनों पर आश्रित रहते हैं, ऐसे अगर विज्ञापन बंद हो जाए तो उनका अखबार का बंद होना भी लाजमी है। लेकिन बड़े अखबारों के लिए जो चिंताजनक बात थी वो ये थी कि कॉस्ट कटिंग का नाम लेकर, कोरोना का नाम लेकर इस पूरे तमाम तरह के प्रपंचों को रचा गया, गढ़ा गया। ऐसा मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। लेकिन जो सारा उत्पादन बंद हो गया, अगर विज्ञापन बंद हो गए, लेकिन सर्कुलेशन गाये बगाहे कम नहीं हुआ जैसा कि क्लेम किया गया। अभी तिमाही रिपोर्ट दिखाई गई INS की, तो उसमें कहा गया कि भाई हम तो फिर नंबर 1 है, तमाम अखबारों ने अपना जो क्लेम किया। तो अगर आप लॉकडाउन के दौरान कह रहे थे कि हमारा सर्कुलेशन बंद हो गया, तो आपका जो है रिपोर्ट में कैसे आया कि आपका जो है फिर आप नंबर 1 हो गए या नंबर 2 हो गए? तो ये आंकड़ों के फेर में, आंकड़ों के हेराफेरी में कोरोना काल ने पाठकों के मन मस्तिष्क पर अखबारी और टेलीविजन जगत की जो छवि प्रस्तुत की वो बहुत चिंताजनक है। और आगे आने वाले दौर में इसको ठीक करने में हमें और समय लगेगा, पत्रकार शिक्षक के नाते और हम पत्रकार जगत के नाते। संपादकीय पेज पर मैंने पहली बार देखा कि कहानी छप रही है, कविता छप रही है। आमतौर पर संपादकीय पृष्ठ जो है अखबार की जान होती है, अखबार का जो थिंक टैंक माना जाता है। लेकिन अखबार जो कहानी, कविता, चुटकुले, परिशिष्ट, इसके लिए परिशिष्ट होते हैं। लेकिन क्या आपने देखा पहली बार ऐसा कि अखबारी पन्नों पर, अखबार संपादकीय पन्ने पर कहानी छप रही है? मुझे पहली बार बहुत आश्चर्य हुआ। सिर्फ संपादकीय है, एडिटोरियल, इसके अलावा तमाम कंटेंट साहित्यिक कंटेंट है। इसका अर्थ यह हुआ कि उस दौरान कंटेंट की इतनी कमी हो गई, या कहा जाए कि कंटेंट क्या लिखा जाए। जैसा कि मैं पाठक के नाते ऑब्जर्व करता हूं, तो निश्चित तौर पे अखबार का नुकसान हुआ ना हुआ, लेकिन हम जैसे सुधी पाठकों का नुकसान हुआ कि हम लोगों को जो दिमाग की खुराक मिलती थी वो मिलना बंद हो गई। नंबर 2, कंटेंट के लेवल पर स्थानीय समाचार कम हो गए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया, रिपोर्टर्स ने फील्ड में जाना बंद कर दिया, तो अखबारों में लोकल कंटेंट कम हो गया। लोकल कंटेंट की जगह वो कंटेंट जो नेशनल, इंटरनेशनल या प्रादेशिक लेवल का था वो लोकल पन्नों पे आना शुरू कर दिया। तो आप एक कल्पना कीजिए कि एक पाठक जो नियमित तौर पे पन्ना नंबर 3, 4, 5, 6 लोकल खबरों के लिए ढूंढता है, अगर वहां पे आपको दिल्ली की, मुंबई की या वाशिंगटन की खबर पढ़ने को मिलेगी तो निश्चित तौर पर निराशा हाथ लगेगी। तो लॉकडाउन के दौरान या पोस्ट लॉकडाउन में भी स्थानीय खबरों की जो कमी हुई वो सबसे बड़ी चिंता की जरूरत थी। कमर्शियल खबरें तो आई थी, लेकिन स्थानीय खबरें कम हो गई। एक जो सबसे बड़ा असर हुआ अखबारों और टीवी में, लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन में एक ही कंटेंट हावी रहा, उसको मैं नाम देना चाहूंगा कोरोना कंटेंट। वही सब कुछ, कितना संक्रमित हुए, कैसे संक्रमित हुए, आगे क्या करना है। और सरकार ने दिशा भ्रम की स्थिति पैदा की, बार बार न्यू नॉर्मल पैदा करके, अभी ये करना है, अभी ये नहीं करना है, अभी ये करना है, अभी ये नहीं करना है। तो दर्शक और पाठक भी ये समझने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखबार भ्रम पैदा कर रहा है। तो अखबारी मीडिया में, टेलीविजन मीडिया में 2 गुट बन गए। एक गुट वो जो सरकारी आंकड़ों के साथ था, दूसरा गुट वो जो सरकारी आंकड़ों के खिलाफ था। एक अखबार कह रहा है कि बिल्कुल सही कह रहा है प्रशासन, इतनी ही मौतें हुई है। दूसरा कह रहा है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, सरकार प्रशासन फेल है, आंकड़े सही ढंग से दिखाई नहीं जा रहे हैं। तो पाठकों और दर्शकों में एक भ्रम की स्थिति मीडिया में तब भी पैदा हुई जब आंकड़ों में हेराफेरी हुई। 2 पक्ष बन गए, प्रशासन के साथ और विपक्ष। जब लाखों मजदूरों का पलायन हुआ महानगरों से गांवों की ओर, पैरों में छाले पड़ गए, वाहन नहीं थे, मजदूरों की डेथ हो गई, उनको पास खाने को सामान नहीं था, उस दौरान मीडिया उन लोगों के साथ खड़ा हुआ था, मानवीय त्रासदी को देखने के लिए, दिखाने के लिए और ये जिम्मेदारी तय करने के लिए कि प्रशासन कहां है, सरकार कहां है। उस दौरान थोड़ी मानवीय संवेदनाएं जागृत हुई जब पलायन हो रहा था। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है उन खबरों ने पैनिक क्रिएट किया, हम पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी और उन लोगों के बीच में भी जो आम दर्शक पाठक हैं। कोरोना ने मीडिया के जरिए पिछले 5 महीनों में, 6 महीने में जो कुछ भी पैनिक क्रिएट किया है वो मुझे लगता है कि इस सदी की सबसे बड़ी घटना हो सकती है। मीडिया हो सकता है कि सूचनाएं करे, हो सकता है सूचनाएं दिखाए, मनोरंजन भी करे, शिक्षित भी करे, लेकिन मुझे लगता है कि इन खबरों ने पाठकों और दर्शकों के बीच एक मेंटल ट्रॉमा की स्थिति पैदा कर दी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सिर्फ सूचनाएं कुछ नहीं होती, थोड़ा संबल और थोड़ा मनोबल पाठकों और दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए। मेंटल ट्रॉमा से निकालने के लिए अगर मीडिया संस्थान अगर पहल करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि अगर कोई चीज पैनिक क्रिएट कर रही है, हमें पढ़ाया गया एथिक्स में हम यही पढ़ाते हैं, अगर कोई चीज पैनिक क्रिएट कर रही है
तो उसको नहीं दिखाना बेहतर है। हम कई चीजों को ब्लर करके दिखाते हैं, कुछ चीजों का नाम नहीं छाप के दिखाते हैं, लेकिन ऐसी चीज जो मेंटल ट्रॉमा क्रिएट कर रही है उसको अगर नहीं दिखाएं, थोड़ा मनोबल बढ़ाने की चीज दिखाएं, संबल बढ़ाने वाली चीज दिखाएं, तो हो सकता है कि वो थोड़ा ठीक हो। पाठक की दृष्टि से देखेंगे मीडिया ने क्या इफेक्ट किया है। पाठकों में इन खबरों के प्रति एक ऊब पैदा हो गई, एक बोरियत पैदा हो गई। व्यक्तिगत तौर पर मैं अगर कहूं तो मैंने पिछले लॉकडाउन के दौरान कम से कम 15 दिन तक अखबार को नहीं छुआ। इसलिए नहीं कि कोरोना फैलता है, इसलिए कि कोई कंटेंट नहीं है उसमें, पढ़ने लायक कोई चीज नहीं है। तो अगर सोचिए कि एक सुधी पाठक के बीच में अगर ये छवि जा सकती है, तो एक आम पाठक के बीच में क्या होगी। WHO की बदलती हुई गाइडलाइन लगातार बदलती रही। कभी कहा मक्खी मच्छर से भी कोरोना फैल सकता है, कभी कहा आपको घर में भी मास्क लगाना होगा, कभी कहा आप चप्पल पहन के घर में मत घूमिए, कभी कहा नहीं ठीक है इससे तो कुछ नहीं होगा। तो बदलती हुई जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन जिस तरह से खबरों पर असर डाला, वैसे ही खबरों की भूख को बढ़ाने के लिए, टीआरपी को बढ़ाने के लिए मानवीयता की हदें पार करके पाठकों ने ऐसी चीजें देखी जो चैनल नहीं दिखाने चाहिए थे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक चैनल का नाम नहीं लेते हुए, सुशांत सिंह की मौत का जो सबसे बड़ा इशू क्रिएट हुआ देश में, और उस दौरान जितनी चीजें दिखाई गई, मुझे लगता है कि एक चैनल जो है जिसने एक नई परिभाषा कर दी पत्रकारिता की, और मुझे लगता है कि वो इस लॉकडाउन के दौरान मीडिया का सबसे बड़ा इफेक्ट है कि उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर पर कंसंट्रेट किया। इसमें भी वो पैदा हुई कि आपके पास कुछ दिखाने को नहीं है। लेकिन कोरोना काल की एक बड़ी उपज हो सकती है, जो मेरा मानना है कि एक नया दौर जो हम लोग पत्रकारिता में कहते हैं, वो है चिल्लाहट का दौर, चीख चीख के खबरें परोसने का दौर। दो चीजें नई शुरू हुई। पहला ये कोरोना काल का इफेक्ट मीडिया पर, एक नया दौर शुरू हुआ, मास्क युग। मास्क युग हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन मैं इसको मीडिया के संदर्भ में बता रहा हूं। कोई भी पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग के दौरान, कहीं पर भी रिपोर्टिंग के दौरान, इंटरव्यूज के दौरान मास्क पहन के हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पहला सिद्धांत है कि आपको थोड़ा चेहरा लिपा पुता होना चाहिए, शेव बनी होनी चाहिए, थोड़ा टचिंग होना चाहिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि टेलीविजन के ऐसे दौर में पहली बार आप चेहरा ढक के पत्रकारिता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता का नया दौर है मास्क दौर। लेकिन साथ ही कंटेंट के लेवल पर देखेंगे तो यह है चिल्लाहट का दौर। जो ज्यादा चीख के खबर देगा वो ज्यादा अच्छा पत्रकार कहलाएगा। ये मुझे लगता है कि ये पत्रकारिता का एक ऐसा दौर है, कोरोना काल में खबरों की कमी, कंटेंट की कमी और टीआरपी की भूख, इस दौर में उन्होंने चिल्लाहट की पत्रकारिता को जन्म दिया। हम अब तक बचपन से पढ़ते रहे कि न्यूज फॉर नॉज, लेकिन परिभाषाएं बदल गई हैं। इसको आप कैसा कह सकते हैं, न्यूज फॉर नॉइज। जो जितना चिल्लाएगा, जो जितनी नॉइज पैदा करेगा, वही न्यूज क्रिएट करेगा। और इसी दौर में आप ये कल्पना कीजिए कि अभी जो स्कैम बार्क ने निकाला, मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की कि टीआरपी के लिए हम लोगों ने ओछे हथकंडे अपनाना शुरू किए। हम लोग जो मीटर लगे हुए घर में उनको खरीदना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब केम था तब भी नहीं हुआ, बार्क आया तब भी नहीं हुआ। मुझे ये पोस्ट कोरोना इफेक्ट है, ये लॉकडाउन, पोस्ट लॉकडाउन इफेक्ट है कि टीआरपी के लिए कंटेंट के लेवल पर भी पाठक और दर्शकों को भ्रमित करने की कोशिश, साथ ही टीआरपी खरीदने के लिए भी किसी भी हद तक जाने की कोशिश की गई। भविष्य का मीडिया क्या होगा, ये हम सब सुधीजनों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि आगे आने वाला दौर बहुत मुश्किल भरा दौर होने वाला है। अभी भी चिंता का दौर छटा नहीं है। अभी भी तय नहीं हुआ है कि कौन सा स्ट्रेन भारत में है कोविड का, और कौन से स्ट्रेन की वैक्सीन बन जाएगी, या कौन सी स्ट्रीम की वैक्सीन हम लोगों पे इफेक्टिव होगी। अभी भी कुछ तय नहीं है। वैसे ही मीडिया जो कुछ भी अभी दिखा रहा है, अभी जो कुछ भी प्रकाशित कर रहा है, वो मुझे लगता है कि अभी दीपावली का दौर शुरू हो गया है, दशहरे का दौर शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा ढील है, माहौल में थोड़ी सी ठंडक आई है, कंटेंट के लेवल पर और मार्केटिंग के लेवल पर भी ठीक हुई है चीजें। लेकिन जब तक ये दशा और दिशा चेंज नहीं होगी, जब तक कि वैक्सीन नहीं आएगी, तब तक ये चीज चलती रहेगी। मैं तीसरे पक्ष पे आता हूं। कोरोना इफेक्ट के दौरान सबसे बड़ी क्रांति हुई, डिजिटल का दौर शुरू हुआ। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब, हम जो 3 पत्रकारिता की स्ट्रीम पढ़ाते हैं, सब कुछ डिजिटल पर शिफ्ट हो गया। अखबार, ई पेपर, ई मैगजीन, ई कंटेंट, सब कुछ शिफ्ट हो गया। जैसे हम लोग कहते थे कि हम लोग सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं,
6 महीने पहले तक यही बात होती थी कि नई पीढ़ी एडिक्ट हो रही है सोशल मीडिया की और हम लोग सोशल मीडिया को देख रहे हैं, सोशल मीडिया हमको चला रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान सबसे बड़ा कंटेंट जनरेशन का जो दौर था वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल पर शिफ्ट हो गया। पूरे लॉकडाउन के दौरान और अभी कोरोना काल के इफेक्ट के दौरान इंटरनेट कि हम लोग 4G के दौर में हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा तकनीकी क्रांति आई है, हम लोग अच्छे इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं और इसी इंटरनेट के जरिए हम लोग तमाम तरह के संवादों को, तमाम तरह के डिजिटल कंटेंट को देख पढ़ समझ रहे हैं और पाठक तक परोस रहे हैं। इस दौरान जब टेलीविजन चैनलों पर बोरियत का दौर शुरू हुआ, अखबारों में बोरियत का दौर शुरू हुआ, तो डिजिटल कंटेंट पर यूट्यूब की पोबारा हुई। हर वो पत्रकार जो खबर रिपोर्ट कर रहा है उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया और जितने यूट्यूब चैनल पहले थे उन्होंने भी उस कंटेंट को जनरेट करना शुरू किया। वो लोकल कंटेंट दिखाना शुरू किया जो टेलीविजन और अखबार में मिसिंग था। तो अखबार में और पाठकों को, टेलीविजन के दर्शकों को अगर लोकल कंटेंट या तो केबल टीवी पे मिलता है या फिर यूट्यूब पे मिलना शुरू हुआ, तो यूट्यूब पे शिफ्ट हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक डिजिटल मीडिया के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई ऐसा मानक नहीं है कि इसका कोई नियंत्रण किया जाए या कोई इस पर नजर रखी जाए। तो उसका नुकसान ये हुआ कि यूट्यूब पे वो कंटेंट भी आने लगा जो नहीं आना चाहिए था। और मुझे शायद ये पहली घटना होगी जब राजस्थान के 2 जिलों में, कोटा और भरतपुर में, जिला कलेक्टर ने कम से कम 45 यूट्यूब चैनल्स को पाबंदी लगा दी उस पर, उनके प्रसारण पर, कि अगर उन्होंने किसी भी तरह का ऐसा प्रसारण किया तो उनको हम 6 महीने की जेल कर देंगे। प्रशासन को ये संज्ञान लेना पड़ा कि अगर इस तरह की घटनाएं यूट्यूब के माध्यम से अगर पाठकों दर्शकों तक पहुंची तो ज्यादा भ्रमित पैदा होगी, ज्यादा भ्रम पैदा होगा, ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दूसरी चीज, कंटेंट के लेवल पर फेसबुक ने बहुत बड़ी मदद की। पहले ऐसा दौर था जब फेसबुक पर सिर्फ वीआईपी लोग लाइव कर सकते थे, अब तो हर कोई लाइव कर सकता है। और अब जो कुछ और चीजें हैं, स्ट्रीम यार्ड हैं या और जो स्ट्रीम्स हैं जिनके जरिए हम लोग लाइव करते हुए फेसबुक पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, सीधा लिंक शेयर कर सकते हैं। गूगल मीट भी ऐसा ही है जिसका आप लिंक यूट्यूब पर भी शेयर कर सकते हैं। तो एफबी पर भी लाइव बढ़ गए। जो कंटेंट, जो चर्चा टेलीविजन चैनल पे होती थी वो चर्चा एफबी पर शिफ्ट हो गई। अब ये कितनी बड़ी क्रांति है। हम लोग जो चैनल के माध्यम से जो कुछ देख रहे थे वो सब कुछ फेसबुक पे शिफ्ट हो गया, यूट्यूब पे शिफ्ट हो गया। तो ये डिजिटल क्रांति का दौर था। और फिल्मों की बात मैं करूं, क्योंकि मीडिया का एक बड़ा अहम हिस्सा है फिल्में, तो फिल्मों का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि थिएटर बंद हो गए। बंद हो गए क्या, बंद हैं अभी तक। फिल्में ठप हो गई, प्रोडक्शन ठप हो गया, निर्माण ठप हो गया, सब कुछ ठप हो गया, लोगों का रोजगार बंद हो गया। लेकिन ऐसे दौर में जो सबसे बड़ा मीडिया का उभर के सामने आया वो था ओटीटी प्लेटफॉर्म, जहां पर तमाम तरह की फिल्में, वेब सीरीज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वेब सीरीज का युग, अभी मेरी एक स्कॉलर वेब सीरीज पर काम कर रही है और लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। तो हमने सोचा था कि ठीक है, इसको जो लोग देख रहे हैं उनसे चर्चा की जाएगी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान हर तीसरा आदमी कह रहा था हम तो वेब सीरीज देख रहे हैं। अनुष्का शर्मा की पाताल लोक की जितनी चर्चा हुई, मुझे नहीं लगता कि इस लॉकडाउन के दौरान और किसी की चर्चा हुई होगी। मुझे कम से कम 5 मित्रों ने कहा आपने पाताल लोक देखा। आप कल्पना कीजिए कि वो फिल्में जो हम लोग टेलीविजन पर देखा करते थे या जो हम लोग थिएटर में देखा करते थे, वो सब कुछ शिफ्ट हो गया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। नेटफ्लिक्स, आल्ट बालाजी, अमेजन, इन सब लोगों ने इसके जरिए अपना रेवेन्यू जनरेशन का तरीका निकाला। ये मीडिया का एक बहुत बड़ा दौर है। कोरोना काल के इफेक्ट के रूप में हम देखें कि सब कुछ चीजें डिजिटल पर शिफ्ट हो गई हैं। गुलाबो सिताबो पहली फिल्म थी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। पहले ऐसा होता था बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती थी। इस फिल्म ने इतनी कमाई की, बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हम लोग इसकी चर्चा किया करते थे। लेकिन गुलाबो सिताबो की जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी 25 करोड़ रुपया, लेकिन अमेजन ने इसको रिलीज किया 65 करोड़ रुपए में। आप कल्पना कीजिए कि अगर थिएटर बंद हो जाए और इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये चल जाए, तो ये एक बहुत बड़ा वैकल्पिक मीडिया तैयार हो गया। तो हम लोग जो पारंपरिक मीडिया, पारंपरिक चीजों की बात करते हैं, वो सब कुछ शिफ्टिंग के दौर में है। कोरोना का एक बहुत बड़ा असर है ये। और जो 4G के इस्तेमाल के जरिए हम और आप जो ऑनलाइन संवाद कर रहे हैं, ये भी इसी की एक उपज है कि हमने गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन एजुकेशन का काम शुरू किया। तमाम तरह के वेबिनार इस पे होना शुरू हुआ। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम लोग इस तरह के वेबिनार में चर्चा करेंगे। कल्पना कीजिए कोरोना नहीं होता, लॉकडाउन भी नहीं होता, सब कुछ ऐसे ही चला होता और यूजीसी या सरकार एक आदेश जारी करती कि सबको ऑनलाइन पढ़ाई करवानी है, तो मुझे लगता है
सभी लोग बहाना बनाते हैं, साहब मुझे तो ऑनलाइन आता नहीं है, साहब मुझे ये तो हम नहीं कर पाएंगे, इस तरह से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक बहाना हो सकता था, जैसा पहले भी हुआ करता था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसी रूप में हम देखेंगे कि तमाम तरह की चीजें ऑनलाइन पे इसलिए शिफ्ट हो गई कि कोरोना का इफेक्ट हुआ, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो वैकल्पिक मीडिया के रूप में डिजिटल मीडिया ने सबसे बड़ी पहुंच, सबसे बड़ी प्रभाव और सबसे बड़ी ताकत दिखाई। तीसरी सबसे बड़ी चीज, पत्रकारिता मोबाइल पर शिफ्ट हो गई। हम लोग कैमरा लेके चला करते थे, बड़े कैमरे, छोटे कैमरे, बड़े चैनल वाले। हालांकि मोजो का दौर साल भर पहले आ गया था, एनडीटीवी ने इसकी शुरुआत कर दी थी, मोजो यानी मोबाइल जर्नलिज्म, जिसने बहुत बेहतर ढंग से काम शुरू किया था। लेकिन वो बड़े पत्रकार या बड़े चैनल उसको थोड़ी हिकारत की दृष्टि से देखते थे कि कोई एक बहुत बड़ा कद्दावर पत्रकार मोबाइल से पीटीसी कर रहा है, उसके थोड़ा ईगो का मामला भी होता था। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि कोरोना ने यह भी सिखा दिया कि आपको सेल्फी स्टिक से रिपोर्टिंग करनी है। कोरोना ने यह भी सिखा दिया कि आपको मोबाइल से रिपोर्टिंग करनी है। क्यों? क्योंकि अगर कैमरामैन साथ होगा तो उसको संक्रमित होने की आशंका रहेगी। तो जो पत्रकार है वो स्वयं सब कुछ कर ले। तो सबसे बड़ा संकट मीडिया पर कोरोना का ये रहा कि वीडियोग्राफर्स, वीडियो जर्नलिस्ट की पोस्ट खत्म हो गई। और आने वाले दौर में मुझे लगता है कि ये समय वापस लौट के नहीं आ पाएगा कि वापस वीडियोग्राफर्स की या फोटो जर्नलिस्ट की या हमारे जो कैमरामैन की हैं उनके लिए कुछ ठीक हो पाए। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी क्रांति है। मोजो युग कोरोना युग का भाई बन के सामने आया और तमाम तरह की वो चीजें जो हम लोग कैमरे के जरिए पहुंचाते थे वो इस पे शिफ्ट हो गई। भविष्य की पत्रकारिता के खतरे देखते हुए मैं समझ रहा हूं कि आगे आने वाले समय में नौकरियों पर संकट तो होगा ही, कंटेंट के लेवल पर भी संकट होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट होने वाला है वो संकट ये होगा कि पत्रकारों के जो हित हैं उसके लिए किस रूप में हम लोग बातचीत कर पाएंगे। पत्रकार का कार्य हर मौसम में काम करना होगा, युद्ध में हो, मौसम बिगड़ा हुआ हो, तूफान हो, कर्फ्यू लगा हुआ हो, हर समय में काम करता रहा है पत्रकार। ये कोरोना काल भी वैसा ही था। तमाम तरह के बड़े पत्रकार इस दौरान वही थे जहां पर हम नहीं थे, हम अपने घरों में कैद थे। लेकिन उन सब लोगों ने सड़क पर रिपोर्टिंग करते हुए बिना डर के, बिना कोरोना के डर के रिपोर्टिंग की और कंटेंट हम तक पहुंचाया। कोरोना वॉरियर एक शब्द है जो पूरे विश्व में चल रहा है। भारत में और सर्वाधिक चलन में कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स को कहा जाता है कि जो कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन पत्रकार भी कोरोना वॉरियर से कम नहीं है। कितने पत्रकार संक्रमित हुए? जब पहली बार TV9 के मेरे एक पत्रकार मित्र हैं अहमदाबाद में जब संक्रमित हो गए तो मुझे बहुत चिंता हुई। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा मुझे खुद पता नहीं कि रिपोर्टिंग करते हुए मैं कब संक्रमित हो गया। ये वो दौर था जब लॉकडाउन के 25वें दिन के बाद की बात होगी, जब बहुत बड़ा पैनिक था। अब तो ये हो गया होम क्वारंटाइन हो गए हैं, अब कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे क्योंकि कोरोना का जो स्ट्रेन है वो चेंज हो रहा है। लेकिन शुरुआती दौर में कितने पत्रकार संक्रमित हुए? ये सबसे बड़ी खबर होगी कि उस दौरान नोएडा में एक बहुत बड़े चैनल का दफ्तर पूरा खाली करवा दिया गया और किसी और जगह से उन्होंने काम शुरू किया। ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है, कोई चैनल या कोई बहुत बड़ा संस्थान किसी और जगह शिफ्ट हो जाए। मीडिया में इससे बड़ा बदलाव और कोई नहीं हो सकता। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ। किसी का ऑडियो होने का शोर हो रहा है रामनिवास, एक बार किसी का ऑडियो चेक करना। हर मौसम में काम करने वाला पत्रकार जब संक्रमित होता रहा उसके लिए न संस्थान साथ आया, न प्रबंधन साथ आया, न प्रशासन साथ आया। मुझे अच्छी तरह से याद है मेरे 2 पत्रकार मित्र नोएडा के, जब उनको एडमिट किया गया अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के बाद में, तो मैंने इनसे पूछा कि अपने प्रबंधन से कुछ मदद मिली या नहीं मिली। तो उनका सीधा जवाब था, प्रबंधन ने कहा अपने स्तर पर इलाज कराइए, हम आपके साथ में नहीं हैं। तो प्रबंधन चाहता है कि पत्रकार हर मौसम में, हर विविधा में, हर कर्फ्यू में रिपोर्टिंग करे, लेकिन अगर वो उस दौर में भी प्रबंधन उसके साथ में नहीं है तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात आने वाले समय में पत्रकारों के लिए हो सकती है। भविष्य की पत्रकारिता किसी का शोर बहुत हो रहा है, किसी का ऑडियो ऑन है। हाँ, और आपकी आवाज आ रही है सर सही? आ रही है, हाँ। मुझे शोर उसका बहुत ज्यादा समय बढ़ रहा है जी, क्योंकि अखबार और टेलीविजन का हम कंपैरिजन करेंगे तो टेलीविजन चैनल के पत्रकारों के लिए ज्यादा। हाँ अपना ऑडियो भी ऑफ कर दो। जी।
ठीक है। अ, जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि हम लोग जब पत्रकारिता के जरिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की जो कंपैरिजन करते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया से ज्यादा खतरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को इस दौरान रहा। क्योंकि प्रिंट मीडिया में सारा काम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। इवन संपादक तक अपने घर पर बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए। रिपोर्टर अपनी खबर करके रिपोर्टिंग करके डाल रहा है, एडिटर अपने घर से एडिट कर रहा है, संपादक वहीं पेज चेक कर रहा है। आप कल्पना कीजिए, आने वाले दौर में समाचार पत्रों का प्रबंधन कहेगा हमें दफ्तर की जरूरत नहीं है। जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब कहेगा हम क्यों दफ्तर की खर्च करें, बिजली, दफ्तर का इंटरनेट क्यों खर्च करें, जब सब कुछ काम घर से हो सकता है। तो क्यों खबर को परोसने के लिए हम लोग बड़े बड़े संस्थान बनाए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए। कल्पना कीजिए उस दौरान जब रोजगार के संकट हो रहे थे, जब लोगों को निकाला जा रहा था, तो क्या भरोसा है कि आगे आने वाले दौर में बड़े प्रबंधन ये कहें कि चूंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, हम 4 जनों की बजाय 2 लोगों से काम चला लेंगे, आप घर से काम कीजिए, हम सब घर पे आपको व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर आगे आने वाले दौर में मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि मैं इससे बड़े बड़े एंकर्स को देख रहा हूं जो घर से एंकरिंग कर रहे हैं प्राइम टाइम की। कभी आपने सुना, हम लोग टेलीविजन समझते थे कि स्टूडियो है, पीसीआर है, एमसीआर है, क्यू, हम उन चीजों को देखते थे जो उसका एक ग्लैमराइज पक्ष सामने आता था। आप कभी कल्पना कर सकते थे कि घर के ड्राइंग रूम में बैठ के मैं एंकरिंग कर रहा हूं? ऐसा कभी नहीं सोचा गया, लेकिन ये दौर भी आ गया है। तो सबसे बड़ा खतरा जो है उन लोगों के लिए नहीं है जो बड़े पत्रकार हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। खतरा उन लोगों के लिए है जिन लोगों को आगे आने वाले दौर में भावी पत्रकार बनना है। उन लोगों के लिए है जो पत्रकारिता में भविष्य तलाश रहे हैं। उन लोगों के लिए है कि सोच रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के दौर में प्रबंधन समाचार पत्रों के उनके साथ नहीं थे, टेलीविजन के प्रबंधन उनके साथ में नहीं थे। इन कहानियों के जरिए पैनिक क्रिएट होता है। तो आने वाले दौर में जो ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, रोजगार की दृष्टि से, काम की दृष्टि से नहीं, कंटेंट की दृष्टि से नहीं, रोजगार की दृष्टि से। तो ये जो हम देख समझ रहे हैं, मीडिया का जो अवसर देख रहे हैं, असर देख रहे हैं, कोरोना का इफेक्ट देख रहे हैं, ये इफेक्ट अभी थोड़ा थोड़ा है। हम लोग 35% तक देख पाए हैं, 40% तक देख पाए हैं, अभी 60% असर आना बाकी है। कोरोना का नाम लेकर और भी कई चीजें होने वाली हैं। तो भावी पत्रकारों में एक भय है, आने वाले समय के और क्या होगा। कई लोग जो पत्रकारिता में थे अपने व्यवसाय को शिफ्ट कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे 2-3 मित्र हैं जिन्होंने इस दौरान जब उनकी नौकरी गई तो उन्होंने कुछ टिफिन बिजनेस शुरू किया, किसी ने कुछ ई मित्र का काम शुरू किया, किसी ने। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। हम लोग एक तरफ कोरोना वॉरियर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में समाचार पत्र प्रबंधन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रबंधन, उन पर कोई असर होना नहीं है, उनका रेवेन्यू कहीं जाना नहीं है। लेकिन कॉस्ट कटिंग के नाम पर, कोरोना का नाम लेकर जो आगे आने वाले समय में रोजगार पर जो कैंची चलेगी, वो भविष्य के पत्रकारों के लिए बहुत खतरा होगा, रोजगार की दृष्टि से बहुत खतरा होगा। तो कोरोना ने हमें बहुत सारे दिन दिखाए हैं और अभी पता नहीं और किन किन दिनों को देखना है। लेकिन हो सकता है भविष्य जो है थोड़ा सा कष्टमय जरूर है, लेकिन हम आशा करते हैं कि इसका भी कुछ निदान निकलेगा। हम लोग विद्वान लोग हैं, विद्वत जनों की भी चर्चाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो कि हम लोग कुछ अच्छी चीजों के लिए, भविष्य की मीडिया के लिए, आने वाले बच्चों के लिए जो अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज क्रिएट करें कि इस पैनिक से बाहर निकल पाए। मुझे लगता है कि इस कोरोना हमको बहुत सिखाया है। हम सब लोग गुरु हैं, सबको गुरु कहते हैं, महागुरु कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुरु तो कोरोना निकला, जिसने सब कुछ सिखा दिया, हमको भी सिखा दिया, मीडिया को भी सिखा दिया। तो रामनिवास, मेरी बात यहीं समाप्त है। अगर कोई जैसा आपने समझ दिया था, जितना 45 मिनट हो गए मैं देख पा रहा हूँ, अगर कोई सवाल जवाब हो या कुछ ऐसा कुछ चर्चा संवाद हो तो मैं स्वागत करूंगा। प्रश्न उत्तर के लिए अभी सेशन ओपन है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। सर मेरा एक सवाल है। जी सर मेरा सवाल ये है कि वर्तमान समय में जो पत्रकारिता का इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में जो रूल हुआ है, जैसे आपने जिक्र किया वर्क फ्रॉम होम हो या फिर इसके अलावा जिन लोगों को जॉबलेस हुए हैं इस इंडस्ट्री में, तो हम जैसे लोग जिन्होंने हाल ही में जर्नलिज्म में पास आउट किया है और आगे रिसर्च के लिए यानी पत्रकारिता में पीएचडी के लिए एडमिशन का प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ पढ़ाई करें या फिर हम संस्थान की ओर जाएं जहां पर हम नौकरियों के लिए नोएडा जैसी मेट्रो सिटी में जाने की तैयारी करें? तो ऐसी स्थिति में ऐसा ये सिचुएशन अभी बना हुआ है, तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, पढ़ाई वाला या फिर मीडिया में जॉब के लिए? देखिए,
मीडिया समाप्त तो नहीं होगा कभी भी, कि एक चिंताजनक का दौर है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिना पत्रकारों के मीडिया चल जाएगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल जो ये है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। पहले ऐसा होता था कि हम लोग एक उप संपादक होता था, लेकिन अगर 3 उप संपादक थे तो भी काम चल जाता था। अब थोड़ी बेरहमी दिखाई जाएगी, ये कहा जाएगा कि अगर 4 लोग काम कर रहे हैं और 2 लोगों से 4 लोगों का काम हो सकता है तो 2 लोग ही करें। तो ऐसे में अपना कंटेंट, अपना अपडेशन और अपनी जो स्किल है वो अगर मजबूत होगी तो हम लोग अपरिहार्य रहेंगे, प्रबंधन के लिए भी और चैनल्स के लिए भी। दूसरी बात ये है कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या जो लोग रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो वो लोग, जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी सेवाओं में जाने की कोशिश में है, पीआईबी में है, डीपीआर में है, जितने पीआरओ की पोस्ट निकलती हैं वहां पर भी जाना चाहते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट पे शिफ्ट हो गए, जैसे कॉर्पोरेट संस्थान है, वो चाहते हैं कि वहां पर भी पीआरओज हों। कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, कई सारे बड़े संस्थान हैं, उनकी तरफ भी रुख किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता की तरफ थोड़ा सा रुझान इसलिए कम हुआ है क्योंकि वो जो नए पत्रकार हैं उनको आगे आने वाले अवसर के बीच में उनका परिवार भी रोकता है। तुम ऐसे दौर में रिपोर्टिंग करोगे या तुम पीपी किट पहन के रिपोर्टिंग करोगे, तो ये कष्ट का दौर तो है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये संकट छट जाएगा, कट जाएगा, तो एक अच्छी स्थिति का निर्माण हो पाएगा। लेकिन सब कुछ तय करता है अपनी स्किल पर, अपनी प्रतिभा पर। अगर हम लोग प्रबंधन के लिए अपरिहार्य हैं तो मुझे लगता है रोजगार पर संकट आएगा, लेकिन तब संकट आएगा जब हम लोग वर्षों से काम कर रहे हैं और प्रबंधन की नजरों में खटकते हैं। तो ये अवसर हमें थोड़ा सा स्किलफुल बनने की भी प्रेरणा देता है। थैंक यू सर। Anyone else who have a question about the subject? सर ने पूछा है सवाल, रेडियो इंडस्ट्री पे क्या असर होने वाला है। मेरा ये मानना है कि रेडियो पर ज्यादा असर इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि रेडियो का काम जो है आमतौर पर फील्ड का काम नहीं होता है। हम लोग स्टूडियो से देखते हैं, चलाते हैं, समझते हैं। हमारे शहर में 4 FM स्टेशन हैं और जो टेक्नीशियंस हैं वो उनको छोड़ दें तो जो कंटेंट लेवल पे काम था वो घर से शुरू हो गया। किसी के रोजगार पे संकट नहीं हुआ क्योंकि रेडियो में ऑलरेडी लोग कम काम करते हैं। ऐसा नहीं, चैनल की तरह टेक्नीशियन भी हैं, कैमरामैन भी हैं, एडिटर्स भी हैं, रेडियो में कम काम करते हैं, तो वहां पे कम संकट आया। मैंने रेडियो में कभी नहीं सुना अभी पूरे लॉकडाउन के दौरान कि किसी को नौकरी से निकाला गया। कंटेंट के लेवल पे असर नहीं आया, क्यों हुआ, लेकिन रोजगार की दृष्टि से कहीं पर भी कोई असर नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि रेडियो इंडस्ट्री, जब से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात शुरू की उसके बाद से थोड़ा सा लोगों में रुझान भी हुआ। एफएम के प्रति तो हमारा रुझान है ही आमतौर पे, न सिर्फ गीत संगीत की दृष्टि से बल्कि हम लोग लोकल लेवल पर कंटेंट की दृष्टि से भी देखते हैं। तो रेडियो का भविष्य तो उज्जवल है, लेकिन आमतौर पे आज के जो विद्यार्थी हैं, सर मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे बड़ा कटु अनुभव रहा है कि जितने विद्यार्थी आए पिछले 10 सालों में, सबने कहा सर रेडियो में नहीं जाना है, सर टीवी में जाना है, चेहरा दिखाना है। मेरे पिछले सत्र के 2 विद्यार्थी जिन्होंने डेडिकेटेडली कहा सर मुझे तो आरजे ही बनना है, और मुझे बहुत खुशी हुई। और वो आरजे में प्लेस हैं, बिग एफएम में, दोनों लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। ये मुझे लगता है कि रामनिवास भी मेरे विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन 10 साल के मेरे अनुभव में कभी भी ऐसा कभी नहीं रहा कि किसी विद्यार्थी ने कहा कि मुझे रेडियो में जाना है। तो इसलिए उस दृष्टि से जब वो जाने की ललक ही नहीं है तो मुझे लगता है कोई अगर और सवाल करना चाहता है, किसी का सवाल है तो वह पूछ सकता है। तो मेरे ख्याल से सर कोई सवाल नहीं है, तो हम समापन की ओर बढ़े। नहीं, चांदनी का सवाल है ना। हाँ, चांदनी राजपूत पूछ रही हैं। इनका सवाल मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये एक सेकंड गायब हो गया सवाल स्क्रीन से। हाँ, मैं सर चांदनी जी चांदनी जी। Yes, sir. My question is that, sir, what will we see corona after effect on media and media people? देखिए चांदनी जी, ये तो सवाल ऐसा है कि इसका जवाब न सरकार के पास है, न WHO के पास है, न किसी ज्योतिषी के पास है, न मीडिया के पास है। कोरोना कब जाएगा, हर व्यक्ति जानना चाहता है। कोरोना कब जाएगा, हम लोग अपने जीवन में कब प्रवेश करेंगे, सामान्य जीवन में कब प्रवेश करेंगे। ये एक बहुत बड़े संकट का दौर है। हालांकि अभी भी वैक्सीन दूर है और हमें लग रहा है कि वैक्सीन अगर आ भी गई तो वो आम
वंचित वर्ग तक या जिस जरूरतमंद वर्ग तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा। तो ये जो दौर है अभी अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। WHO कहता है लगातार कि स्ट्रेन बदल रहा है, जो स्ट्रेन यूरोप में है वो अफ्रीका में नहीं है, जो एशिया में है वो न्यूजीलैंड में नहीं है। तो आप कल्पना कीजिए कि स्ट्रेन भी अलग अलग है। और आज मैं अखबार में पढ़ के चकित रह गया कि यूरोप में नया स्ट्रेन नई लहर के साथ सामने आया है और लगातार WHO चेतान रहा है कि सर्दी बढ़ गई है, सर्दी बढ़ने के साथ में नए स्ट्रेन के साथ हमला हो सकता है। तो अभी तो अनिश्चितता का दौर है, कहीं पर भी कोई आशा की किरण दिख नहीं रही है कि कोरोना कब जाएगा। हर व्यक्ति जानना चाहता है, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि कोरोना कब जाएगा। हम और आप भी जानना चाहते हैं। ये सब भगवान के हाथ में है, ये ईश्वर की लीला है कि ये जो चीजें हैं इसको ठीक करने में कोई अद्भुत शक्ति होती है। मुझे लगता है कि कभी न कभी तो ऐसी दवा बनेगी जिससे हम लोग उभर पाएंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर कुंदन, मैं Yes, sir. इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा था कि दरअसल पत्रकारों के साथ और मीडिया कर्मियों के साथ लॉकडाउन के दौरान जो कुछ मीडिया मालिकों ने किया जी, वो तो बड़ा निंदनीय है ही, लेकिन जी, सवाल ये भी उठता है कि ये आखिर क्यों हो पाया, क्यों कर पाए? क्योंकि जी, जी, आप देखिए कि पिछले 3-4 महीने के दौरान जैसे ही छटनी शुरू हुई और संकट शुरू हुआ, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी जो थी उसने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि भाई आप कुछ टैक्स कम कीजिए, कुछ जो है न्यूज़ प्रिंट पे लेवी कम कर दीजिए ताकि हमारी इंडस्ट्री का थोड़ा संकट कम हो जाए। एनयूजे जो था, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए वो लोग कि सरकार जो है एक तरफ कह रही है कि ये कोरोना वॉरियर है पत्रकार, और दूसरी तरफ उनके साथ जो मीडिया इंडस्ट्री के लोग ये बर्ताव कर रहे हैं, तो कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। और जजेस ने भी कहा कि हालांकि वो जो अपील है, वो जो पिटिशंस हैं वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि पूरी एंटायर जो इंडस्ट्री है पिछले 20 साल में धीरे धीरे जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट से वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे, हायर एंड फायर वाले सिस्टम पे शिफ्ट हो गई है। और अब किसी को एक दिन का नोटिस दे के, क्योंकि जैसे नोना वालिया का जो ट्वीट वायरल हुआ था, या फिर कई और जो कि भी अचानक आप सुबह जो है अपनी बीट पे रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं और अचानक आपको जो है HR मैनेजर हाथ में एक लिफाफा, एक लेटर जो है थमा देता है, या फिर मेन गेट पे जो है नोटिस चिपका होता है कि आप आज से जो है आपको नहीं आना। तो ये इस तरीके का जो बर्ताव है ये तब कर पाए ये मीडिया मालिक क्योंकि देश में हायर एंड फायर कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम लागू हो गया। आप सोचिए कि हजारों हजार जो स्ट्रिंगर्स थे, देश के स्ट्रिंगर जो रिपोर्टर थे, जो पार्ट टाइम भी थे और जो न्यूज बेसिस पे जिनको पेमेंट मिलता था, उनके साथ क्या हुआ होगा, है ना? तो ये भी एक बात है। और उससे भी दुखद ये है, जो बहुत ही चौंकाने वाला है, हम सबको ये याद रखना होगा कि ये सब जो पत्रकारों के साथ हो रहा था, तो पूरी मीडिया इंडस्ट्री में ये कहीं कोई न्यूज नहीं थी। मतलब ये जो पूरा दुर्व्यवहार हुआ पत्रकारों के साथ, उसको मीडिया ने रिपोर्ट भी नहीं किया। देखिए, जो पत्रकार सारे दुनिया में अन्याय की रिपोर्टिंग करता था, जब उसके साथ अन्याय हुआ तो कोई मीडिया में कोई न्यूज नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं है। ये बड़ा दुखद है, ये बड़ा दुखद है। इस बात पे मतलब आवाज उठनी चाहिए और दोबारा से देश में जो पत्रकार संगठन है देश में, उनको दोबारा से संगठित किया जाना चाहिए कि भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां हैं, लेकिन आप इस तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो ये बड़ा एक ऐतिहासिक रहा। जी सर, सबसे बड़ा संकट ये है सर कि पत्रकार संगठन जितने हैं वो इतने सशक्त नहीं है कि वो सबकी आवाज एक साथ उठाते तो हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर आवाज उठना बहुत मुश्किल होती है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पत्रकारों पे अत्याचार की खबर नहीं हुई कहीं पे भी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि अगर किसी रूप में हम लोग कोई बात कहना चाह रहे हैं कहीं पर भी, समाज के किसी प्लेटफॉर्म पर, तो चूंकि मैं 15-17 साल मीडिया में काम करके आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ और देश के प्रख्यात कवि अशोक वाजपेयी आए थे उसमें मेरे विमोचन करने के लिए उदयपुर मेरे बुलावे पे, लेकिन देश के सबसे बड़े अखबार ने मेरी 1.5 दिन की खबर छापी सिर्फ लास्ट पन्ने पर। उनके पूरे कार्यक्रम के दौरान मैंने पूछा संपादक को, साहब कि मेरी खबर क्यों नहीं छापी? बोले तुम तो पत्रकार हो, तुम्हारी खबर क्या छापनी है, तुम्हारा काम खबर छापना है, तुम्हारी खबर छापना अखबार का काम नहीं है। तो मुझे लगा कि मेरा पत्रकार होना गुनाह हो गया। तो ये वही स्थिति आज भी है
कि अगर कोरोना के संकट के दौरान इतने संस्थान बंद हुए, इतने संस्थानों पर ऐसा हुआ, इसकी चर्चा जिक्र कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो काम करने के लिए ही बने हैं, इनकी समस्या छापना हमारा काम नहीं है। हमारी समस्या छापना, हम उनकी समस्या छापेंगे जो और लोग हैं, समाज के और लोग हैं। चाहे पत्रकार कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले, चाहे कितना बड़ा संकटग्रस्त हो जाए, उसके बारे में एक शब्द नहीं लिखना है। और दूसरा सर, जो आपने कहा कि आवाज उठाने का जो काम था, पत्रकारों ने इंडिविजुअल लेवल पर इसलिए आवाज नहीं उठाई कि एक तो मजीठिया का चक्कर था पहले, कि पहले से ही मजीठिया के दौर में लोगों को छटनी शुरू हो गई थी और लोगों को ट्रांसफर कर दिया था, जिन लोगों ने केस किया था। दूसरा ये कि अगर हमने एक शब्द भी उठाया कहीं पर भी किसी भी रूप में किसी प्रबंधन के खिलाफ, तो हमें कल कह दिया जाएगा नौकरी से निकाल देंगे। तब कोई प्रेस क्लब साथ नहीं आएगा, कोई एनयूजी साथ नहीं आएगा, सरकार साथ नहीं आएगी। और तो और वो मंत्री संतरी प्रशासन के लोग जो रोजाना पत्रकारों के बीट के संदर्भ में बात करते थे, वो भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। तो पत्रकारों में बड़ा भय नौकरी जाने का होता है प्रबंधन के सामने। तो मुझे लगता है पत्रकार पूरी दुनिया को बदल सकता है, संस्थान और प्रबंधन को नहीं बदल सकता है। जी सर, मेरा एक सवाल आपसे और है इससे रिलेटेड ही डॉक्टर साहब, कि बॉलीवुड की ये सारी चीजें तो बाहर आई थी कुछ समय पहले, जो कुछ भी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण हुआ या केस हुआ है जिसको लेकर के, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं खुद पत्रकारिता कुछ समय करने के बाद दिल्ली छोड़ करके वापस मेरे जोधपुर गया था और वहां से मेरी आप जर्नलिज्म चल रही है, मैंने मास्टर कर लिया और पीएचडी में मेरा एडमिशन। लेकिन सर, दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मीडिया इंडस्ट्री का गंध है वो क्यों बाहर नहीं आती है, या जो कुछ भी हो रहा है इंडस्ट्री के पीछे, जितने लोग सुसाइड कर रहे हैं या जिनका कारण क्या रहा है, ये न तो अखबारों में छपती है और न ही इस खबरों को प्रमुखता से कोई टीवी चैनल या कहीं पर भी दिखाया जाता है, क्योंकि वो ये इस बात को, या तो डर उन्हें इस बात का है कि फलाने चैनल में हुआ है, हो सकता है हमारे चैनल में कल होगा तो वो लोग दिखा देंगे। ये सारी चीजें सर कहीं ना कहीं बाहर आनी चाहिए ताकि एक साफ छवि की पत्रकारिता होनी चाहिए, और पत्रकारिता का हम जैसे लोग भविष्य तलाश रहे हैं उनके लिए रास्ता या प्रशस्त हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना रहा है कि जब पत्रकार संकट में होता है तो खबर नहीं बनती कभी भी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी पत्रकार ने आत्महत्या की, या किसी पत्रकार भूख में मर गया, या किसी पत्रकार के घर परिवार में कोई संकट हो गया। हाँ, ऐसा जरूर होता है, कुछ अखबार ऐसे हैं जिनके घर में शोक होता है तो चालन की खबर जरूर छापते हैं कि इनके घर में शोक हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1998-99 का दौर था, मैं एक बड़े अखबार में रिपोर्टर था और मुझे एक बड़े असाइनमेंट का जिम्मा दिया गया, तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ा खतरा है। मैंने संपादक से जिक्र किया कि मैं अगर इस खतरे में गया तो मुझे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको जनरल मैनेजर से बात करनी होगी क्योंकि आदेश ऊपर से आया है। मैंने जीएम से बात की, मैंने कहा सर अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो संस्थान क्या मेरे साथ खड़ा रहेगा, क्या मेरे परिवार के साथ खड़ा रहेगा? तो उन जो महाप्रबंधक थे उनका जवाब सुन के मैं सन्न रह गया। उन्होंने कह दिया कल आपको कुछ हुआ तो हम आपका शोक समाचार निःशुल्क छापेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। तो ये एक पत्रकार के बड़े दुर्भाग्य की बात है, करने में कितनी बड़ी बात हो सकती है। ये मैं बात में 1999 की बता रहा हूँ, स्थितियां आज भी बदली नहीं है। अगर किसी पत्रकार की नौकरी जाती है तो हम लोग badaspotmedia.com पर पढ़ते हैं, कहीं किसी अखबार में नहीं पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई फोरम ही नहीं हमारी बात करने के लिए। लोकतंत्र का चौथा खंबा जो देश दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, सरकारों को बदलने की ताकत रखता है, क्या वो अपने प्रबंधन का मानस, प्रबंधन का विचार बदल सकता है? बदल सकता है। नौकरी से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। अगर उसने क्रांति करने की कोशिश की तो अगले दिन प्रबंधन उसको ऑफिस के गेट पर लिफाफा थमा देगा। और अब तो कॉन्ट्रैक्ट पर सर, अभी सर ने कहा कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट परंपरा शुरू हो गई है कि भाई 30,000 में एक आदमी रखने के बजाय 10,000 के 3 लोग रखो। बड़े संस्थान अपने नाम से पैसा नहीं देते हैं, बड़े संस्थान सब टाइटल करते हैं, किसी एक कंपनी को ठेका देते हैं, उसके तहत उनको सैलरी दी जाती है। कल को आप कोर्ट में साबित नहीं कर सकते कि आप मैं इस संस्थान में काम करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं लीगली भी ये संकट होता है। हाँ, आपने जो सवाल किया पत्रकार खबर में तब आता है, पत्रकार खबर में तब आता है जब टीआरपी के लिए मीटर खरीद लेता है। पत्रकार खबर में तब आता है जो स्टिंग ऑपरेशन करने गया उसका खुद का स्टिंग ऑपरेशन हो जाए। पत्रकार तब आता है जब वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए। पत्रकार तब आता है जब ऐसी कोई नेगेटिव चीज में पकड़ा जाए तो जरूर खबर बनेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे में सामने वाला संस्थान जो उसका प्रतियोगी है वो बहुत खुश होगा, देखो इसके पत्रकार ने ऐसा किया, इसको खबर को जरूर छापो। वरना बड़े अखबार लिखते हैं नाम न छापने की शर्त पर एक अखबार हम नहीं ऐसा करके छापते हैं, लेकिन क्या होता है तब नाम लिखा रहता है। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि अंदर की जो राइवलरी है अखबारों की,
वही सबसे बड़ी राइवलरी है। बड़े बड़े प्रबंधन एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम लोग सुना करते थे कि सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों को हाईजेक कर लिया जाता था कि आज तो उस गांव में 10,000 सर्कुलेशन कम कर दिया। तो प्रबंधन जो कहेगा वो पत्रकार को करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पत्रकार अगर इंडिपेंडेंट काम कर पाएगा तो वो बहुत बड़ा दौर होगा, क्योंकि आज भी अगर एक प्राइम टाइम शो में आप कुछ कंटेंट सरकार के खिलाफ दिखा दीजिए तो आपकी नौकरी जाना तय है कल। तो ऐसा दौर है, तो व्यक्ति क्या दिखाए क्या ना दिखाए इसका बहुत बड़ा संकट है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी चिंतन की बहुत जरूरत है, चिंता की जरूरत तो है ही। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास जी। जी सर। सर व्याख्यान के लास्ट में हमारे धन्यवाद की प्रक्रिया रही है हमेशा से, तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं कुंदन सर का स्पेशल विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके हमें टाइम दिया, और उन्होंने किस तरह से प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ना केवल सोशल मीडिया पर क्या इम्पैक्ट है, हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म इंडस्ट्री पर किस तरह से इसका प्रभाव रहा कोविड-19 और इस महामारी का, और किस तरह की प्रॉब्लम पत्रकारों ने और मीडिया में काम करने वाले साथियों ने मतलब किन समस्याओं का सामना किया। तो हमेशा ही वो अदर सिचुएशन में रहे कि व्हाट टू डू और नॉट टू डू और व्हाट विल बी हैपन आफ्टर द कोरोना एंड ऑल। तो इन सारी चीजों के जवाब आपने बहुत ही बखूबी से और पूरे लेक्चर में आपने कवर किया है। तो आपका ये व्याख्यान बहुत ही शानदार, उम्दा और अद्भुत रहा सर, तो थैंक यू सो मच। और इस कड़ी में नेक्स्ट मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे अचोड़ी देवव्रत सर का, जिनके मार्गदर्शन में हम ये लेक्चर सीरीज पिछले 2 महीने से चला रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपकी आज्ञा से हम जारी रखेंगे सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से जुड़े हुए सभी मेरे साथी शिक्षकगण, प्रोफेसर्स, पीएचडी स्कॉलर्स और छात्र छात्राओं का धन्यवाद जिन्होंने जो हमारे साथ आज जुड़े। तो आप सभी का धन्यवाद, हमसे जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।